India for technical programs and Bar Council of India for law programs. We are currently offering postgraduate programs in MBA International Business, and undergraduate programs in BBA, BBLLB and BLLB. Our institute has been awarded as A grade by the National Assessment and Accreditation Council in the second cycle. We have also been rated A+ by the State Fee Regulatory Committee, a fee committee of NCT of Delhi, and rated the highest grading A by the Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and Guru Gobind Singh Indraprastha University. We have been rated grade A by the Academy College Cell of Guru Gobind Singh Indraprastha University consecutively for past 8 years. Our institute has been rated grade A, number 2 by the Times Peace School Survey consecutively from 2019 to 2021. And this year we have been ranked number 1 by the Times Peace School Survey for our BBA programs. Adding another 12 to our success, we proudly state that we have been ranked number 49 in the top 150 B-School surveys in India and 34 in the top 100 private institutions in India. Now, I would like to introduce you all to the chief guest of our program, Sir R.S. Goswami. At present, he is the chairman at the Enrollment Committee at Bar Council of India, and he was the ex-honorable secretary of Bar Council of India and ex-honorable chairman of Bar Council of Delhi since 2004 till date, continuing litigating at Bar Council of India. And practicing leading advocacy last more than 36 years and having more than 50 juniors at present working under him. I would like to welcome you, sir, and I would also request Director sir and Chief Guest sir to come up here and present sapling as a gesture of gratitude to our Chief Guest. Can we have a big round of applause? Very good morning to all of you. It's an honor to have Honorable R.S. Goswami with us. And looking at the experience, I had happened to interact with him only for 5 minutes over a cup of tea. And it's an honor to have him with us. And I hope with his expertise, we'll be able to learn a lot in this guest lecture of 1 hour. With his advent to our institution, I will request him to keep on coming so that our different students or different batches can have the honor of listening to him. And with this, without wasting much of the time, I will request Your Honor to please take up the stage and address the audience. Thank you. आवाज इसको ठीक नहीं सही है, थोड़ी कम जा रही है. Professors and students, friends, this is my privilege to come before you today itself, because today is very important day for me also. Not only we are here today, we are going to enroll more than 500 students from various parts and various universities of India in Bar Council of Delhi today itself. That meeting will be held at 4:30 p.m. in the Bar Council office. वहाँ भी मैं जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन लोग आते हैं, ये you are all are lucky. Since before completing the course of law, I am here with you and you are here with me. This opportunity only you will get when you complete the law and apply for registration in the Bar Council of Delhi. Last 20 NLU Delhi, NLU Bangalore, NLU Bhopal, NLU Jodhpur, आपको पता है उनका स्टेटस और सिस्टम क्या है? उनको क्यों मिल गया वो? क्योंकि उन्होंने एम बनाया था. जो बात मैं आपसे 2 साल बाद करता हूं, ये आप लकी हैं कि वो बात हम आज शेयर करने जा रहे हैं. जैसे कि आपको 2 साल आपकी लाइफ के नुकसान नहीं होंगे, आपको 2 साल का फायदा मिलेगा. कैसे पूछिए? जिन्होंने एमबीबीएस चुना उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप कल्पना नहीं कर सकते.
जो बच्चे MBBS करते हैं वो 18 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके क्लास क्लियर होती है। जो IIT करते हैं उनको 15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, और जो NLU पढ़ते हैं उनको वहां बड़ा इजी नहीं है, बड़ा डिटेल्स में उनके साथ एग्जाम होता है। पहले तो टेस्ट ही क्लियर नहीं होता। तो आप ये देखिए कि आप भी एडवोकेट बनेंगे, NLU वाले भी एडवोकेट बनेंगे, आपके साथ के लोग MBBS डॉक्टर MBA करेंगे। अब आप ये देखिए कि हम कहां खड़े हैं। आज का जो टॉपिक है काउंसलिंग का, ये लगे हैं आप लोग। जब आपको मैं इनवाइट करता हूं शाम को 4:30 बजे बाद काउंसिल ऑफिस में, आप आइए, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और जब वहां सुनेंगे कि आपसे तो मैं कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, टाइप भी बात नहीं कर सकता, केवल आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। जो हो सकता है आज के मेरी इस स्पीच नहीं कहूंगा, सॉरी, आज की मेरी आप लोगों के साथ डिस्कशन से आपका किसी एक का भी कैरियर बन गया। एक ने भी सोच लिया कि वो स्वामी जी आप ठीक कह के गए थे, तो मैं समझता हूँ मेरा आज का यहाँ आना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्यशाली होगा कि आप में से एक आदमी मैंने दिल्ली की जुडिशरी का जज बना दिया, एक को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, एक को अटॉर्नी जनरल। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैंने जो बात आपकी शुरू की थी 12th के बाद की, ये बात आपको रियलाइज होनी चाहिए। इस कॉलेज का एडमिशन इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं जितना आप सोच रहे हैं। सॉरी, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में जिसकी कैटेगरी आ गई एडमिशन हो गया। अब आप ये देखिए, जिस समय आप कंप्लीट करने के बाद लोग, जब आप कंपटीशन में आओ, आपके साथ कंपटीशन में कौन होगा? NLU वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। आउट ऑफ 48 जजेस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, 42 जजेस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट। थोड़ा इसको रियलाइज करो। लेकिन आज आपके पास समय ऐसा नहीं है कि यहाँ की एजुकेशन कोई कमजोर है, वहां की एजुकेशन है। वो एक मेंटल सोच है। पढ़ाई तो सब जगह वो IPC है, CRPC है, हमको उस लेवल से पढ़ना है। हम तो आज आते हैं, एक दिन आए, 4 दिन हम क्लास अटेंड नहीं करते। ठीक, क्या करते हो आप? कहाँ जाते हो? क्यों जाते हो? I can give one example. I belongs to my native village, Nandagaon, Parsana, in district Mathura. In 7th class, I have decided that I will become a criminal lawyer. In 7th class, everybody will laugh. How you can decide you will become a lawyer, good lawyer? After completing during that tenure, since 7th class to graduation, जब 12th के बाद तो 2010 में आया है, I have decided कि मुझे जब इस प्रोफेशन में जाना है, तो I have attended so many debates and participated in debates. उस समय मूव कोर्ट का कोई सिस्टम नहीं था। Result of which I have got thrice national prize in debates. When I completed graduation, immediately I got admission in law. There was only a government colleges, कोई private sector नहीं था। And Mathura was 25 kilometers from my native place. There was no transportation. मॉर्निंग उठता था, साइकिल लेता था, 10 किलोमीटर एक कोसी कलाई शहर है, वहां पहुंचता था। वहां से एक ट्रक लेता था, ट्रक मथुरा पहुंचाता था। ट्रक से उतर के 2 किलोमीटर पैदल चल के क्लास आया। अब क्लास क्या होगी कि इसलिए मैंने डिस्कस किया, वहां जो शहर के स्टूडेंट थे, शहर मथुरा के, वो आते नहीं। अब प्रोफेसर आते थे तो अकेला में बैठे, जब एक आध और लड़का कोई बैठे, लड़कियां तब लो नहीं करती। आज आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर। आप सबका मैं स्वागत करता हूं कि बराबर के काउंटिंग में आप लोग यहाँ हो और इस प्रोफेशन के साथ। और ये भी बता देना चाहता हूं कि अभी दिल्ली जुडिशरी का रिजल्ट देख लीजिए, 70% आर गर्ल्स हु हैव कंप्लीटेड जुडिशरी। ये आप लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है, तब नहीं करते। तो प्रोफेसर कहते थे मिस्टर गोस्वामी, मैं एक को क्या पढ़ाऊंगा,
तो मैं कहता था सर आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? जब मैं तो 50 किलोमीटर से आया, फिर मुझे यहाँ से ट्रेन लेनी है बॉम्बे जनता, फिर कोसी उतरूंगा, कोसी फिर जाऊंगा, फिर जिस कॉलेज में पढ़ता था मैं उसी कॉलेज में फिर जाके इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था। वहां से जो पैसा आता था उसको अपने ऊपर खर्च करता। इस तरीके से 3 साढ़े 3 साल चलता रहा। लास्टली व्हेन आई कंप्लीटेड द लॉ, जिस दिन मेरी लॉ पूरी हुई, एग्जाम पूरा था, मैं एक रात भी नहीं सोया। एंड आफ्टर वहां रिजाइन किया कॉलेज के अंदर, एक बॉम्बे जनता की टिकट ली, एक बैग लिया, बैग क्या कहेंगे, थैला, बैग में थैला, कुर्ता पजामा पहना, सीधा दिल्ली आ गया। कोई नहीं था, नोबडी वाज देयर टू हेल्प मी, बट डे एंड नाइट आई हैव डन हार्ड वर्क, रिजल्ट ऑफ विच जहां सिंगल वोटर ना हो, सिंगल जानकारी ना हो, मैं लोगों के फ्री केस करता था। वकीलों के जिन पर कोर्टों में बोलना नहीं आता था, आर्गू करना नहीं आता था, मैं कहता था मैं करूँ, बोले इतने पैसे नहीं, पैसे मत देना। विद इन 1 year each and everybody knows Mr. Goswami is arguing well, and I received, I got a lot of work. So after some time I started job work, criminal sides, without taking fees। एक एमिकस क्यूरी होती है, जैसे जिसके पास कानून सरकार की तरफ से, जिन गरीबों के पास पैसा नहीं होता उनके लिए लीगल एड जैसे होता है, वैसे एमिकस क्यूरी होती है। लेकिन एमिकस क्यूरी के लिए 7 years का एक्सपीरियंस चाहिए, और मेरा मात्र 6 month का एक्सपीरियंस। तो 4-5 सेशन जजेस थे, वीएन चतुर्वेदी, एसएल सिंह चौधरी, तो उन्होंने मेरा आर्गुमेंट देखा। ओनली 6 month की प्रैक्टिस में इधर मेरे सीनियर से क्या कह दिया, जिसके साथ मैंने काम ज्वाइन किया, कि लोगों ने आके कि यार तुमने गलत आदमी को अपने साथ रखा है, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे काम को ले जाएगा। जबकि मैं उनको कमा के देता था और सिंगल पे नहीं देते, सिंगल पे। उन्होंने 6 month बाद मुझसे कहा कि यू कैन गो, मैं नहीं रखूंगा। अब कहाँ जाए? फिर इंडिपेंडेंट शुरू किया, एमिकस क्यूरी की केस की। 6 month 2 साल के बाद देखे काम आने लगे। आप रिजल्ट ये देखिए, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग व्हेन आई वाज द जूनियर, तब मेरे साथ जूनियर थे। जैसे मैंने 100 रुपए कमाए तो मैं 10-10 रुपए 3 जूनियरों को देता था। जब मैं 1000 रुपए कमाता था तो मैं 500 रुपए जूनियर को करता। और आज मैं आपको प्राउडली कह सकता हूँ, हिंदुस्तान में लॉ फर्म में जरूर 100, 200, 500 वकील हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 50 वकील नहीं हो सकते। मेरे पास फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल डेट 50 लॉयर्स हमेशा इंडिपेंडेंट बने रहे, और मोर देन 800 लॉयर्स मेरे यहाँ से गए, जिसमें से लगभग 30 से 35 लड़कियां इस समय जुडिशियल अफसर हैं दिल्ली के। क्यों? बार काउंसिल लड़ा था, जब वोटर ही नहीं था, आई केम फ्रॉम मथुरा, तो वोट कौन डालेगा? ओनली टू डू हार्ड वर्क। वोटर भी बने, चुनाव जीता, सेक्रेटरी बना बार काउंसिल का, बार काउंसिल में तब्दीली लाए, एडवोकेट वेलफेयर फंड नाम से एक एक्ट बनाया, जिसमें लॉयर्स के लिए सुविधा दी गई कि जो बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। चेयरमैन बना दिल्ली का फुल प्लेस, 2 साल चेयरमैन रहा। उस पीरियड में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया की में फर्स्ट टाइम सारे चीफ जस्टिस को बुलाकर विज्ञान भवन में, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर दिल्ली, वकीलों के लिए वेलफेयर स्कीम चलाई। शायद आप लोगों की नॉलेज में नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड ओनली दिल्ली इज द स्टेट वेयर आप लोगों ने इन्वॉल्वमेंट करा रखा, नहीं करा रखा। तो अभी स्कीम है चीफ मिनिस्टर वेलफेयर स्कीम, उसके अंदर 10 लाख रुपीज इन केस ऑफ कैजुअलिटी और 5 लाख रुपीज एज ए मेडिकल क्लेम, सारी दुनिया के अंदर नहीं, जो आप लोगों के लिए हमने बना रखा है। कौन होशियार है, कौन इंटेलिजेंट है, नो कंसर्न। केवल एक कंसर्न है कि मुझे बहुत अच्छा वकील बनना है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दूसरे से ज्यादा, कोई कहे कि सचिन तेंदुलकर कैसे बने, ऐसे नहीं। तो दुनिया सोचती थी तो मुझे कपिल सिब्बल कैसे बना, अरुण जेटली कैसे बने, सब दिल्ली से है। रामजी झोलानी कैसे बने,
केवल हम इसको एक एंजॉय के लिए लेके चले तो पढ़ाई एंजॉय की है, लेकिन प्रोफेशन में एंट्री की बात करते हैं। यदि आज से आप विचार नहीं करोगे तो यू विल बी इन ट्रबल। ये सोचे हमारे पास भी बहुत वक्त है, मेहनत इतनी करें। आप ये बताइए, आप लोगों का आईपीसी क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी तक? हो गया? आप बताइए थेफ्ट क्या है? थेफ्ट कोई भी बताए? कोई प्रॉपर्टी को पोजीशन से बाहर लेता है। क्या खड़े हो बताओ? दिस इज नॉट मैनर। डिसऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी को किसी के पोजीशन से बाहर लेता है। कैसे? सर वो सेक्शन 373 जो आईसीसी का डील करता है, if I'm not wrong with that, थेफ्ट में क्या करता है वो आदमी? सर wrongful कोई भी बताए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो प्रॉपर्टी को रिमूव करता है उसकी पोजीशन से। बोलो। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो एक कोई प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट या विदाउट नॉलेज में उसको एक यस, ये है जो पहला वर्ड यूज किया आपने ना, नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज से भी हल्का वर्ड। दूसरी बात, ये बात आपकी समझ में आई कि पढ़ना जरूरी है। अब आ जाओ मॉरल। जितने हम इजी लेके चलते हैं प्रोफेशन में, बहुत अच्छा लगता है, कप ऑफ टी, खाना पीना रहना। एडवोकेट बनने के बाद यू विल कवर्ड अंडर दी 35 एडवोकेट एक्ट। रोड पर खड़े होकर गोलगप्पे खाना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, अपने साथ के साथ हम इनरोलमेंट भी करते हैं तो साथ के साथ हम उनका लाइसेंस भी कैंसिल करते हैं। अभी 35 एडवोकेट्स का लाइसेंस टर्मिनेट किया है। मैं उस कमेटी के अंदर भी हूं जो बार काउंसिल इंडिया की अपील आती है। मैं लाइन पर डेली उसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं 10 केसों की, 3 से 3.5 में उसमें मैं डेली जुड़ता हूँ। उसमें किसी की 7 साल की सजा हो गई, किसी की 5 साल की, किसी की 3 साल की। वो क्यों होता है कि इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं है। इस प्रोफेशन में शॉर्टकट, बेईमानी कुछ नहीं है, झूठ नहीं। आपको लगता है दुनिया कहती है कि झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूँ दुनिया में केवल वकील ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता। झूठ क्लाइंट की जो बात होती है उसको अदालत तक पहुंचाता है। झूठ उसे कहते हैं 50 रुपए की चीज को 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए उसे झूठ कहते हैं। हमको ऑनेस्ट रहना होता है। वी आर नॉट द एडवोकेट, वी विल बी ऑफिसर ऑफ द। हमारी लिमिटेशंस भी हैं। हम नौकरी नहीं कर सकते, हम कंपनी नहीं चला सकते, हम कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकते। अभी हमें कोई पद मिल जाए आज कैबिनेट से, मोदी जी की कृपा हो जाए कि गोस्वामी जी आ जाओ आपको एक पद दे देते हैं, कांट टेक। हमको पहले लाइसेंस सक्सेस कराना पड़ेगा। मैं अभी 2 कमेटियों के अंदर हूँ, नेशनल में रेलवे बोर्ड के अंदर हूँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। वहाँ यदि चेयरमैन बनते हैं तो मुझे अपना लाइसेंस तुरंत, लाइसेंस के साथ बात काउंसिल गई। इसलिए हमारी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। हम जितना इजी ले रहे हैं, मैं आपको कहाँ से ला रहा हूँ, घुमाता हुआ पैक से ला रहा हूँ। एक खुशी पैदा करिए, इसको एंजॉय का साधन मत बनाइए। आज आपको लग रहा है जिस समय आप यहाँ तक बड़ा आनंद है जब तक कॉलेज में, जैसे आप 5th के बाद निकल के जाओगे, एनरोलमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में करने के बाद, काउंसिल में करने के बाद, ये चीज फैक्ट, तो यू विल बी लकी, यू विल बी एनरोल्ड बाय दिल्ली बार काउंसिल, बिकॉज ओनली दिल्ली बार काउंसिल इज वेयर यू विल फील प्राउड दैट within 30 minutes you can appear in Supreme Court, within 10 minutes you can appear in High Court, within 5 minutes you can appear in District Court. ये केवल दिल्ली का आपको लेके प्रिविलेज है। और कहीं झारखंड में यदि कोई एनरोल होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का सपना भी नहीं देख सकता, हाई कोर्ट देख भी नहीं सकता। कोई आंध्रा से एनरोल होता है, कोई भोपाल से, इतना ईजी नहीं है। आप तो यहाँ से गए, अभी गाड़ी ली, अभी टैक्सी की, आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट। तो इसको प्रिविलेज दीजिए, और जब प्रिविलेज लोगे तो उसके लिए हार्ड वर्क जरूरी है। मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, इसमें आज भी, ये ऑनेस्टली सुनना चाहता हूं, ऑनेस्ट। मैं फीवर में भी होता हूं, बुखार में भी होता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बार काउंसिल या आज वकीलों का काम नहीं करना, आज क्लाइंट से मीटिंग नहीं करनी। यदि मैं ये कह दूं मैं 1 हफ्ते के लिए बीमार हूं, और क्लाइंट आधे निकल जाएंगे, उनको बीमार वकील नहीं चाहिए। ये नोट करो आज। अब मेरे पास इंटर्न्स हैं आप यहाँ,
आपकी भी कॉलेज की 2 लड़कियां हैं, जरा देखते हैं। एक यहाँ से नैन्सी गर्ग गई है, 5 साल एजेंट। एक अभी आपके यहाँ 5th है उसका, शायद आप जानेंगे उसको, निशारिका सिंह। काफ़ी अच्छा उसका स्टेटस है, बहुत अच्छी। उसने शायद बता रही थी कि कॉलेज को भी मैंने मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर उसके हैं, उसने ज्वाइन किया है, 4th है उसका। तो खुशी होती है कि भाई आप लोगों के यहाँ से यदि इस तरह से जाएगा तो प्रसन्नता होती है कि भाई हमने इतना काम किया। मेरा केवल क्वेश्चन ये है, आप लोग इंजॉय से पढ़ो, कोई टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, लेकिन इतनी पढ़ाई तो करो ना कि कल तुम्हारा पड़ोसी आके आपसे कहने लग जाए कि वकील साहब मेरा ये मैटर मैं कस्टडी में चला गया, लड़ाई के अंदर मेरी एप्लीकेशन लिख दो, कोर्ट में कैसे चलोगे? ये सब चीज कहाँ से लोगे यदि आप नहीं करोगे? आप क्या कर रहे हो? मैं एंट्रेंस देखता हूँ, कोर्टों में जाते हैं, कोर्टों में खड़े होंगे, जज साहब की स्पीच चल रही है, जज साहब भाषण दे रहे हैं, एंट्रेंस खड़े, कुछ नहीं रखा है एंट्रेंस में। उस वकील के साथ एंट्रेंस करिए आप जहां आपको ड्राफ्टिंग सीखने को मिले या काम सीखने को। कोर्टों में तो पूरी जिंदगी रहना, आपको होल लाइफ रहना है। हमने क्या किया है? इस लॉ को एक एंजॉयमेंट का साधन बना दिया। कोई काम नहीं है दुनिया में भाई लॉ को, ये सोच मत बनाइए। आप सोच ये बनाइए कि हमें जज बनना है, सोच ये बनाइए हमें अच्छा वकील बनना है, हमें अटॉर्नी जनरल बनना है, हमें सॉलिसिटर जनरल बनना है, हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, हमें लीगल फील्ड में जाना है। ये चीज सोचिए। हम क्या सोच रहे हैं? घर वाले हो जाते 5 साल का पीछा छूट गया, आराम से आओ, पढ़ाई का टेंशन नहीं, पढ़ा रहे 50 स्टूडेंट थे क्लास में तो 15 हाजिर होते हैं, 35 नहीं। वो प्राउडली कहते हैं कि हम तो कॉलेज जाते नहीं, हम तो वैसे पास हो जाते। किससे कह रहे हो बात? किसको सुना? अपने आप को सुनाओ। जो आज फ्रेंडशिप है, जिस समय एडवोकेट बन जाओगे, तुम्हारे पास काम आ रहा है, सामने वाले के पास काम नहीं आ रहा, उसी दिन फ्रेंडशिप टूटेगी। कोई फ्रेंडशिप नहीं इस प्रोफेशन के अंदर। मेरा एज एन टुडे नो फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं। अभी मैं आज की फोटो फेसबुक पे डाल देता हूं, ठीक? तो जो मेरे से कंपटीशन में है, बार काउंसिल में है, कहीं और है, क्या कहेंगे? अरे गोस्वामी जी, अरे आप हमें नहीं बताइए, यह कोई किसी का नहीं है। मैं लगातार पिछले हफ्तों में कम से कम 6 कॉलेजेस, 3 नोएडा में गया हूँ, अग्रसेन में गया हूँ, आपके यहाँ विक्स में गया हूँ। मैं कोई फोटो नहीं डाला, पहले डालता था, बहुत शौक रहता। ऐसे ही आपका प्रोफेशन है, सेम है। पढ़ाई में किसी के 80% आए, किसी के 70 आए, किसी के 50, इससे कोई फर्क नहीं। आप प्रैक्टिकली कितनी मेहनत करते हो? माँ बाप ने आप लोगों के लिए सपने देखे, केवल ये सपना नहीं देखा कि LLB कर ली तो हो जाएगी। एनरोलमेंट आज आपका पक्का हो गया, आपको तो मैं आज ही कर दूं, आपका 2 साल पहले का आज ही कर दूं एनरोलमेंट। बोलो, बताओ। उनसे तुम पहले बैठ जाओ, उनसे जाके वो 4:30 बैठेंगे ना, तुम 3:30 बैठ जाओ। कहते जी हमारा कर दो पहले, आज आपका एडवांस 2 साल पहले कर दे। बोले जी हमारा एनरोलमेंट हो गया, क्या करोगे? कहां जाओगे? जिस दिन एनरोलमेंट हो जाता है और जब लड़की बाहर निकलती है, लड़का बाहर निकलता है, तो उसको पूरा खुशी तो मेरे साथ होती है जितनी देर में उनके साथ रहता हूं, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी का टोकरा आता है, जैसे जब तक आपकी मैरिज नहीं हुई, कितना घूम रहे फिर रहे, मम्मी ने कुछ कह दिया, थोड़ा भड़का दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, कुछ लड़ लिया, लेकिन जैसे ही मैरिज में इंटर करके जिस दिन ये लगे कि आज शादी की 7वां फेरा पंडित जी ने कंप्लीट कराया, उसके बाद खुशी कितनी देर होती है? शादी ना होने से पहले। उसके बाद क्या होनी? सुबह से शाम सास कुछ कहती है, ससुर कुछ कह रहा है, हस्बैंड कुछ कह रहा है, बोले मैं कहां फंस गया, लड़का कहता मैं कहां, मेरी जान को दूर से बन गई। ऐसे इन्वॉल्वमेंट है, सेम शादी है। शादी की डेट फिर भी भूल जाता है इंसान, जब लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, मुझे तेरी याद ही नहीं करना। लेकिन इन्वॉल्वमेंट की डेट तो आपकी ऐसी होती है जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ। कैसे भूलोगे? बदले पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे सिर पे टोकरा बन गया ये वकालत का, काला कोट टाई, सुबह शाम रात दिन। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, कई बार मेरा मन करता है मैं भाग जाऊंगा। जैसे मैं लंदन चला गया या कहीं बाहर चला गया तो मोबाइल तो खुला रहेगा ना,
तो मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि जब चला करो तो इस मोबाइल को स्विच ऑफ करो। मैं स्विच ऑफ कर ही नहीं सकता, मेरे ऐसे रहती किसी का फोन नहीं आ जाए, किसी का टेंशन का काम है, नहीं बंद कर सकते। हाँ तो आप कभी भी लोग सामने से ट्रक आए तो बोले क्या करें, बोले आप पूछ लेना, बोले फिर क्या करें, बोले सारा काम ट्रक वाला करेगा। ऐसी ही प्रोफेशन है। आज बड़ा आनंद है, मैं कह रहा हूँ इस आनंद को भी लो, 2 साल है आपके पास, लेकिन सीरियस जो जब हो जाएगा, ये मत सोचिए कि सीरियस हम LLB करने के बाद और एनरोलमेंट करने के बाद सीरियस होंगे। सीरियस तो आप अपने गुरुओं को पूछो जो आपको पढ़ाती हैं, कितनी मेहनत के बाद, कितनी परिश्रम के बाद अपने आप को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं, तुम्हें भी पढ़ाते हैं, फिर ये देखते हैं कहाँ हम अपडेट हो सकते हैं, कहाँ आपको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। केवल जरूरत किस बात की है? हैव ट्रस्ट, हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ। आप विश्वास करिए, ये मत सोचिए कि गुरु हमारा कितना नॉलेज रखता है, उस बात पर मत जाइए। नोबडी इज अबव द लॉ एंड ईच एंड एवरी लॉयर, जजेस, इवन आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लर्नर, हर आदमी लर्नर है। यदि वो लर्नर ना हो तो वकीलों से क्यों पूछते हैं? आप वकीलों को काबिल मानते हो जज को? क्यों? अपनी बात अपने मन से कह दी, खुशी हो गई। क्यों भाई? जज को सब कुछ बना के तो वकील ही देता है। कौन बोला भाई? खड़े होके बता। सर जज को सब कुछ बना के तो वकील ही देता खड़े तो थे, बेइज्जती हो रही है। है। ये सीट बंद हो जाती तो फिर तो यहाँ है। वकील बनो अभी से महसूस करो। आज महसूस करिए आप लोग कि हम वकील बन गए। गोस्वामी जी ने एनरोल कर दिया, मैं नहीं रहूंगा 2 साल बाद तक, तो मेरा अभी लेटेस्ट दिया है एनरोलमेंट। मैं तुम्हारी एक की आराम से नहीं करूंगा एनरोलमेंट, ध्यान रखना। तुम तैयार होकर नहीं आए तो ये समझ लेना कि तुम्हारा भाग अलग, तो तुम्हारे साथ आज मीटिंग करके जा रहा हूँ। हाँ क्या बोला तुम? मगर सर जज को बना के तो वकील ही देते हैं ना सारा समाज, वो तो बस बोल देते हैं कि हाँ ये नहीं है बात, हम आपको बताते हैं इसका मतलब। कुर्सी कहीं आपसे रह गई। बोलो। सर एक्चुअली जो जुडिशियल ऑफिसर है वो एक प्लेटफॉर्म पे चलता है, लाइक कोई एक्ट को पकड़ के चलता है, वेयरएज जो एडवोकेट है वो क्लाइंट की सुनता है और अपनी जो उसको अपनी जो बात रखनी है उसको उसके बारे में रिसर्च करता है और उन्हें फोर्स करता है कि वो उसकी बात को मान ले। विदिन भाई ताली बजाओ सर उनके लिए। आपने ट्राई किया है, बाकी मैं असलियत बताऊं क्या है। Advocate is better than judge, and client is better than advocate. जज के पास 100 फाइल, उसे नहीं पता किसकी, वकील ने उस फाइल से पैसा लिया है। लेकिन यदि जज काबिल है, आज नई चीज सीख जाओगे पूरी जीवन याद रहेगा। जज काबिल है तो कहेगा मिस्टर काउंसिल काइंडली सी पैरा नंबर 7 पेज नंबर 22। वकील काबिल है, लॉर्ड से काइंडली सी पैरा नंबर 52 पेज नंबर 103। जज पलट जो जिस पर हावी है, हावी कब होगी? नॉलेज, पढ़ना, गॉन थ्रू जजमेंट्स। जज नॉलेज रखता है तो तुम्हें रिलीफ नहीं देगा, और वकील काबिल है तो रिलीफ ले लेगा। अभी आज से 1 हफ्ते पहले रोहिणी के डिस्ट्रिक्ट जज थे मिस्टर यशवंत कुमार जी, ही गॉट रिटायर्ड। तो इनका एक जुडिशरी का प्रोग्राम था 30 हज़ार में, सारे जजेस का। तो वकीलों में से नहीं बुलाते, इनका अपना जजेस का प्रोग्राम होता। बीइंग कुछ भी समझो, मुझे नहीं पता क्यों प्यार करते हैं लोग, आई डोंट। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मेरा लेक्चर करा। तो मैंने उनसे कहा आप ये मत समझिए कि यू आर इंटेलिजेंट तब जज बने, सॉरी, आप भाग्यशाली हो, आपको राज जो मिला है। कितने लोग इंटेलिजेंट हैं जो जज नहीं बने, और कितने लोग इंटेलिजेंट हैं जो जज बनना ही नहीं चाहते। आपको जो जिम्मेदारी दी है उसको ईमानदारी के साथ निभाइए, और केवल वकील को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ओनली पे रेस्पेक्ट।
आपने बहस की कोर्ट में, आपको मुझे रिलीफ नहीं दी, तो मेरी ड्यूटी बनती है आपके प्रति। थैंक यू वकील साहब, यू हैव डन वेल जॉब, वेल डन। तो वकील का काम हो गया। जो पैसा वकील ने लिया था ना क्लाइंट से, वो क्या हो गया? डाइजेस्ट। यदि जज ने ये कह दिया मिस्टर काउंसिल यू हैव आर्ग्यूड वेरी वेल, फिर मैंने कहा जजों को, उसे इतना इंटरेस्ट आया मुझे हिलने नहीं दिया। बार बार गोस्वामी जी और को क्या कहूँ आप लोगों से, रोज आपके सामने पेश होता हूँ एजेंट होकर कि आप मिलकर आपको वकील से जब भी तुम्हें रिलीफ नहीं देना, दो पढ़ाई वकील की करिए। वकील साहब तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, बहस बहुत अच्छी लगी, कहिए। वकील इतने में खुश, पैसा डाइजेस्ट। और आपने वकील की बेइज्जती क्लाइंट के सामने ही कर दी, क्लाइंट के सामने ही आपने इंसल्ट कर दी उसकी, तो वकील क्या महसूस करेगा? रिलीफ भी ले लेगा ना, तब भी क्लाइंट बोलेगा हमारी बेइज्जती। वकील साहब आपकी आवाज भी नहीं की क्या? तो एडवोकेट इज बेटर देन जज इफ ही डू हार्ड। मैं बार बार कह रहा हूं, नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है इस प्रोफेशन का आज तक भी। और इस प्रोफेशन का जो सबसे बड़ा फायदा है जो दुनिया में नहीं, बताइए क्या? 3 फायदे बताओ इस प्रोफेशन के, और 3 प्रिविलेज बताओ। क्या प्रिविलेज है? आज तुमको सारी चीज बता के पूरा कर दूंगा, फिर तुम अपने बीच में से मुझे देना आगे चल के मत देना। 3 प्रिविलेज बताइए और 3 फायदे बताइए। कोई बताओ पीछे सोचिए, बोलो सर। है जी, बोलो ना सर। वन तो इधर यू कैन प्ले विद लॉज, इनके साथ एक्ट्स के साथ खेल सकते हो। मतलब बेसिक जो लीगल बुक्स है उनके साथ आप खेल सकते हो। सेकेंडली आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। नहीं, मेरा तो हर साल मुझे तो रुपये वो तो रजिस्टर्ड होगा सर। Being an independent lawyer, you do not pay the- तो रुक लिया, ऐसा कानून हो तो बताओ। इंडिपेंडेंट लॉयर्स को इनकम टैक्स हाँ। सर, इंडिपेंडेंट लॉयर्स को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 32 लाख दिए लास्ट ईयर, 65 में। और हाई कोर्ट के जज 16 अपने मन में बना लेते हैं, बोल लेते हैं। एक आदमी बताओ, अंदाज से बताओ, खड़े होकर 62 तुम लोगों के लिए कानून। और डिस्ट्रिक्ट जज कितने साल में निकाले थे? अपने आप घटाते जा रहे, मर्जी। हाँ जी, कौन बोला था? 60। तालियां। डिस्ट्रिक्ट जज 60, हाई कोर्ट जज 62, सुप्रीम कोर्ट जज 68। वकील गुड़िया कहती है जब 80 का लेता है, कोर्ट चले जा कुछ तो लेके आएगा, भेज देती है सीधा घर से जा। हर सर्विस में व्यक्ति रिटायर होता है, इस सर्विस में रिटायर नहीं होता। सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है। नंबर 2, दुनिया की किसी प्रोफेशन के आगे, किसी नेता के आगे, किसी इंजीनियर के आगे, जो तुम्हारे संग के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं IIT, लर्नर बट यूज नहीं होता। जैसे ही as soon as you will appear in the court will mention your name, learned advocate such and such। learned का मतलब क्या है हिंदी में? काबिल। ये तो ठीक है, वकील तो ये बन गई, क्रिमिनल की तो छोड़ दो, हर चीज में क्वेश्चन है इसके पास, ऐसे चाहिए वकील। लर्नेड का हिंदी अर्थ क्या है? अरे भाई ज्यादा इंग्लिश आ गई ना, इसमें मतलब हिंदी में पढ़े, हिंदी में रहे हो और हिंदी बताने को राजी नहीं। जानकार किस चीज का? हिंदी में यदि हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? लर्नेड एडवोकेट को विद्वान अधिवक्ता, अधिवक्ता। याद हो गया तुमका?
यदि तुम यूपी में वकालत करोगे गाजियाबाद में तो तुम्हारे आगे लिखा जाएगा विद्वान, और दिल्ली में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? लग्न। पहला प्रिविलेज नो एज बार, दूसरा प्रिविलेज एक तुम्हें राइट है। साथ में एक चीज और यूज करिए एडवोकेट एक्ट में, एडवोकेट को कभी आप विटनेस नहीं बना सकते। आपके क्लाइंट के साथ में कोई भी डिस्कशन हुआ है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, कांट पुट द क्वेश्चन हो कि तुमने अपने क्लाइंट के साथ क्या किया। ये किसी को अधिकार नहीं है, सीक्रेसी आपकी और क्लाइंट के बीच की को कोई आपसे बहुत बड़ा अधिकार है, और जो एविडेंस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं है। अदरवाइज तो आप 120 के रोज मुझे बन जाओगे। यदि ये अधिकार नहीं आया होता, आप गहराई से लीजिए, समझिए। कोई 120 भी बताएगा मुझे क्या होता है, उसमें आप आ जाओगे कि जी तुमने, तुम्हारा क्लाइंट कहता है जी मुझे तो वकील साहब ने कही थी तू बड़े वकील साहब तो दब गए। तो ये अधिकार नहीं होता तो कितने वकील डकैती में, कितने वकील चोरी में, कितने वकील मर्डर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मनीष सिसोदिया के साथ 4-5 वकील चले गए होते भी 10-5 को पहले जैन साहब ले गए होते, 5 साल को ये ले जाते, वकील सलाह तो वकील ही दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अधिकार हमारा क्या हो गया? प्रिविलेज। ये लॉ में 2 राइट समझ में आएंगे। नंबर 1, हर चीज का रेस्ट्रिक्शन है, हर चीज का कोई रेस्ट्रिक्शन। मुर्गी आप जितनी फीस ले लो, जितनी चाहो मांग लो, तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंड करता है, तुम्हारी डिस्कशन पे डिपेंड करता है, तुम्हारे पावर पे डिपेंड करता है, तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। जैसे अब मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट दूं, सीखोगे? जोर से बोलो। जैसे क्लाइंट बैठा है, ठीक, मैं सोच रहा हूँ बात करते करते इससे ना इतने पैसे 1 लाख इतने देना है, क्योंकि नहीं लेना ही लेना नहीं, देखना भी तो देगा नहीं देगा। हाँ, ये थोड़ी मांग लो जो मांग लो। थोड़ी देर बाद जब चाय वाय आ गई, थोड़ी हम क्लाइंट के साथ इंटीमेसी बढ़ाई, और क्या काम धंधा क्या है आपका, हमने थोड़ा पूछना शुरू किया। फिर लगता है नहीं यार, एक तो कम रह जाएंगे, जैसे 2 मांगे। फिर आधा घंटे और उसने दिमाग का होता बनाया हमारे का, जबकि इसको कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी कैपेसिटी भी लग रही है, 5 की कह के देख लें। फिर डर लगता है 5 कह के भाग ना जाए। ये जी बोलो फिर नहीं, पूछते पूछते फिर मन में आया ट्राई मार के देखे, इसे 10 कह दें, और हमने 10 कह दिया हिम्मत करके। और डर तो ये कि भाग ना जाए। डर क्या भाई, ऐसा है वैसा, 1 घंटा तुमने जो अपना दिमाग का भूता बनाया, इधर की फेंक उधर खिलाई, इधर खिलाई, इधर कर, केस की बात थोड़ी करते हैं। साइकोलॉजिकल उसको जीतते हैं कि वो हमें विश्वास पैदा करे कि जिसको हम ड्राइविंग दे रहे हैं लाइसेंस अपना गाड़ी चलाने का, वो और वकीलों से अच्छा। भाई साहब इसके 10 लाख रुपए, तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं है? तो मन में खुशी हुई, थोड़ी सी ज्यादा है, कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं भाई साहब, काम बहुत ज्यादा होता है, मेहनत है, ये है वो है, खर्चा है, थोड़ा कम कर। बहुत खुशी कि रुकेगा थोड़ा, अब कितना घटाएगा ही। अच्छा आपको बता दें क्या घटा सर, ऐसा कर रहे थे ना 7 मीटर। देख भाई खर्चा तो बहुत ज्यादा, क्या करें, लेकिन अब तेरा हमारा संबंध है, शायद भेजा है उन्होंने, तो 7 फाइनल करे भाई। 7 में मेरा मन तो नहीं मान रहा है, पर तू कह रहा है 7 हमने। जब वो चला गया फिर मुझसे बढ़िया की चाय बना दिया, दूध कम पत्ती ज्यादा। तो ये अधिकार किसके पास है? कोई आपके ऊपर। अब जो हमारी गुड़िया कह रही बार बार इनकम टैक्स का सेंस वहां से शुरू होता है व्हेन यू विल रिसीव द पेमेंट बाय वे ऑफ आरटीजीएस, बाय वे ऑफ टैक्स। वकील कहाँ ले रहे हैं पैसा? टैक्स लिया, गिनते नहीं वकील,
क्या करेंगे, पूरे कम हो जाएंगे 2-4 नोट, क्या फर्क पड़ेगा, हमने कौन सा इसको जो बेचे हैं। क्लाइंट 100 टाइम्स की बात उदाहरण देता हूँ, दूसरा मुझे पैसे गिर लो, मैं तो देखो आप लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, पैसे क्या करने होते हैं। मैं तो 1 सेकंड उसके हाथ से निकला और मैंने दराज खोल कर ताला मारा, दोबारा यहाँ कहते कि ऐसा मन नहीं बनता मेरा। जो आरटीजीएस से पेमेंट आता है उसमें तो इनकम टैक्स सबसे बची, वो आपको उसमें से खर्चा कट कर, जैसे इफ यू आर पेइंग द पेमेंट, अपने जूनियर्स को आप पेमेंट दे रहे हैं, आप इंटर्न्स को पेमेंट दे रहे हैं, आप स्टाफ को पेमेंट दे रहे हैं, उसका जो खर्चा कटता है उस पर आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। तो तीसरा प्रिविलेज आपने सुना, कौन कौन से प्रिविलेज हो, मेरा ध्यान नहीं रहता जहां से शुरू होता हूँ। सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं? और प्रिविलेज ऑफ सीक्रेसी, तीसरा ऑफ मनी, जितनी ज्यादा फीस मांग लो बड़ा वकील, पूरी फला वकील जी 5 लाख रुपए हेयरिंग देता है, और जो 5 लेता है ना 10 लेता है, हम तो रूल संग रहते हैं ना बड़े जो हाई कोर्ट वाले जी में, और ये जरूरी नहीं उनको रिलीफ मिलता हुआ, ऐसा भी नहीं है। वो जो आर्ग्यू करते हैं वो केवल क्लाइंट को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, इतने इंग्लिश बोलते हैं वो, आधा जज की समझ में नहीं आती, आधा अपोजिट पार्टी की समझ में नहीं आती, आधी अपने समझ में नहीं आती। बोलने के बाद कोर्ट कहता है कि आई एम ट्राइंग टू रिजेक्ट योर बेल प्लीज मिस्टर काउंसलर, either you are going to withdraw or dismiss, my lord kindly appreciate the order of dismissal का, फिर आध घंटा बोलेगा जब तक वो डिसमिस हो, बाहर निकलते ही कहेगा बैठ जा, जज इज नॉट गुड, आई विल मूव टू लेकिन जो वकील लेके गया सीनियर के पास उसकी शक्ल उतर जाती, क्योंकि उसे जो बीच में कमीशन मिलना होता है बेचारे को, जो मेहनत करके अंजाम के लेके गया है, वो फिर अपने क्लाइंट, वो तो निकल गया वकील सीनियर तो उस कमरे से निकल के, चाहे उसका केस नहीं है कोई दूसरा, लेकिन दूसरे कोर्ट में घुस जाएगा, क्यों कोर्ट से छुड़वाएगा अपना। जो जूनियर वकील है जो केस लेके गया, जैसे आप मेरे पास लेके आए, वो बेचारा 1 घंटे तक अपने क्लाइंट को कैंटीन में ले जाएगा, समझाएगा, कुछ उसे खिलाएगा पिलाएगा, देखो जी अब क्या करें, जब तो मैंने तो देखो जी वकील साहब ने बोलने में तो कोई कसर। मैं कभी आज आपको एक बहुत बड़ा मूल मंत्र 1 करोड़ रुपए का दिया, मैं कभी भी कोर्ट में आर्गू लंबा नहीं करता, पूछिए तो रिलीफ आपको मिलनी है तो केवल आपकी 5 मिनट में मिलनी है। केवल मैं आर्गू तब करता हूं जब मुझे 100% पता है कि डिसमिस होगी, तब मैं इतनी करता हूं, वो जज भी कहता है कि बहुत हो गया, कहां तक हो गया, क्योंकि क्लाइंट खड़ा रहता है, मैं उसको इधर खड़ा हुआ सुन, बाहर जाके क्या कहता है, सर बहस आपने बहुत अच्छी, रिलीफ जब मिलनी होगी तो 2 मिनट में मिलती कि सर ये जुडिशियल कस्टडी, हाँ सीआरपीसी शुरू हुई है नहीं हुई। अब बताइए कि एक पर्सन इज इन जुडिशियल कस्टडी, इन विच सेक्शन वी मूव द बेल एप्लीकेशन, आपस में तय करके बताओ, मैं मना पूरी कर रहा हूँ, हाथ की जरूरत होती है सर, नॉन अवेलेबल के लिए 437 और अवेलेबल के लिए 436 फॉर, हाँ देखिए एक संस्कृत का एक श्लोक है, अर्ध भोजन, अर्ध भोजन, अर्ध भोजन का मतलब समझो, आधा भोजन, वृद्ध गाय, बूढ़ी गाय, दाता दे नरक में जाए, यदि किसी को दान में दोगे तो उससे पुण्य नहीं मिलेगा नरक में, किसी को भोजन कराओ तो कराओ प्रॉपर, नहीं कराओ मत कराओ, अधूरा ज्ञान छोड़ दो, आप प्रॉपर पढ़ो। बेलेबल में कोई सेक्शन नहीं है, बेलेबल तो बेलेबल, जब बेलेबल है तो फिर बेल क्यों लगाएंगे, नॉन बेलेबल है तो इफ यू आर मूविंग द बेल एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट, then you will move the application under section 437. वो 438 में if the person is not in custody and apprehension of his
Anticipatory. arrest, then you can move the application under section. पैसा किसमें ज्यादा मिलता है? 49. बताओ। 39. 39 में जो उसमें क्यों मिलता है? उसमें इसलिए कि वकील कहता है कि मैं तुझे जेल नहीं जाने, जो जेल चला गया वो कहने गए 4 दिन और सही, जब जेल चला ही गया। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, टोटली आई हैव डिस्कस टुडे, यू हैव हर्ड सो मेनी सीनियर्स, intelligent persons, great personalities. I never give this speech. Always I try to touch your heart. Practically one. And ये चीजें आपको आज नहीं, whole life आपके जहन से निकलेगी। जो डिस्कशन हम प्रैक्टिकल कर रहे हो, यदि यही लॉ में हो जाए प्रैक्टिकल डिस्कशन का, अब जैसे मूड कोट करते हैं, इतना अच्छा है आपका विजन। अभी मैं एग्रेशन में था 1 हफ्ते पहले, जो बाहर से टीमें आई हुई थी, क्या आर्ग्यू करते हैं, क्या बहस करते हैं, क्या जजमेंट साइड करते हैं, वो नॉलेज जो आप यहाँ से लोगे वो लाइफ में दोबारा नहीं। जो स्टूडेंट लाइफ आप आज एंजॉय कर सकते हो, वो जिंदगी में दोबारा स्टूडेंट लाइफ आपको नहीं। मेरी प्रार्थना आप लोगों के साथ ही है, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों के, मैंने अपने जितनी भी मेरे पास एक आप लोगों को बताने लायक मैंने उचित समझा, होने को अनलिमिटेड है बाय ग्रेस ऑफ द गॉड। आज जब बार में आएंगे आप लोग तो यू विल फाइंड माय हिस्ट्री कि जितनी भी रेवोल्यूशंस हुए हैं बारों के अंदर, चाहे बाइफरकेशंस को लेकर, चाहे किरण बेदी की स्ट्राइक को लेकर जो हिंदुस्तान की वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्ट्राइक, चाहे वकीलों के वेलफेयर को लेकर, मैं हर एक के अंदर मंच कर रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ, वकीलों के हित के लिए काम किया है। सॉरी बात कौन सी है? हाँ जी विनोद जी, सब सुनो। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलो। वो मीटिंग के लिए रिमाइंड करना था सर। सर मैं मीटिंग में जरूर आऊंगा सर। कितने बजे? 3 बजे का हाईकोर्ट में। फिर उसके पार्टियों को फोन कर दिया। दूसरा एक मैंने एनरोलमेंट एप्लीकेशन सबमिट करा रखी है जी, और अपना सीएम के साइन है, संजय के सीएम जी जी। तो उसका क्या इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा रखा है कि जो उसका एलएलसी का सर्टिफिकेट एलएलपी करने के बाद का है जी, तो मैं वो तो क्या मैं ऐसी थोड़ी बदल सकते हैं? हाँ बोले वो उसको ये ऑब्जेक्शन है। चलो आई विल सी इट मीटिंग में 4:30। हाँ जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये सुपरटेंडेंट का बात कंक्लूड है, तो रिमाइंडर दे रहा था, कंटिन्यूस 3 मीटिंग है अलग अलग, वेलफेयर की मीटिंग अलग है, एक जो हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना रहे हैं उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, एक जो वकीलों की वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री है, फर्जी डिग्री, उसमें मेंबर और इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर मैं आपके साथ, जितना समय आपके साथ है, अब आप लोगों को कोई क्वेरी, कोई हलचल दिमाग का, ये बात समझ जाएंगे। अर्थभोजन वाली बात, लॉ को अर्थभोजन में नहीं ले जा सकते आप, इसको आपको परफेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। आप कहें कि प्रोफेसर हमें पढ़ाइए, सॉरी, ये तो आपके गाइड है, लॉ में कोई नहीं पढ़ा सकता, लॉ तो एक गाइड है, आपको समझा सकते हैं, लॉ तो बना हुआ है, उसे क्या पढ़ाना है, तो पढ़ना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को करना हो मेरे से, मैं आपके 20 मिनट हो रहे हैं आपके मेरे पास, आप पूछ सकते हो। एक पानी तो मिलवा दो बेटा, पानी कम है तो 1 घंटे से बोलो, ये तो हंस भी लेते हैं तो हंस भी नहीं पा रहा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। है कोई क्वेश्चन? कोई भी शंका समाधान, कैरियर से लेके, करेक्ट काम से लेकर, प्रोफेशन से लेकर, कोई चीजें पूछे। अगर कोई केस हार जाते हो, खड़ा हो, मैं क्यों हार जाऊं भाई, तू हार, बता। अगर कोई केस हार जाते हो तो उसमें क्या कहते हो आप क्लाइंट से? सुनो, जैसे एक क्लिनिक वाला डॉक्टर कहता है, जैसे एक मरीज की तबीयत ठीक नहीं हो रही तो वो कहता है कि गंगाराम ले जाओ उसको, क्या कहता है डॉक्टर? बड़ी हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया में। यदि कोई केस आप लूज करते हो, इसीलिए ब्रदर
4 अदालत। इनिशियल स्टेज पर इफ यू विल लूज योर केस, immediately you will file the appeal in session. If you will lose the case in session, you will file the revision in High Court. If you lose the case in High Court, you will file the SLP in the. So you will have 4 times opportunities. ऐसा थोड़ी एक चीज आप मजिस्ट्रेट के सारे केस जीत जाओगे, केस तुम थोड़ी हारोगे ना, क्लाइंट तो हर एक का मुकदमा लड़ना ना आपको, उसके केस में कितना कंटेंट है क्या, वकील थोड़ी आता है केस, वकील तो अपनी मेहनत करता है। यही मैं आप लोगों को समझाने आया हूं, आप अपनी मेहनत करिए, उसका भाग्य उसका कर्म उसके साथ। हाउ यू कैन डिसाइड द लक ऑफ एनीबॉडी, कैसे डिसाइड करोगे आप तो केवल मेहनत कर सकते हो, जजमेंट दे सकते हो, लेकिन सामने वाला भी आपके सामने लड़ रहा है, वो भी आपसे युद्ध कर रहा है। एक बार मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, चलो हंसने की बात है। हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मिस्टर मुकुंद कुमार शर्मा, लेटर ऑन ही बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज। एक थे मिस्टर जैन, वीके जैन साहब, जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के बने, जिन्होंने दिल्ली के अंदर आप लोगों को पता हो जो तोड़ा तोड़ी का कार्यक्रम शुरू किया था, जितने दुकानें थी ये सब आपने देखा ना 4-5 साल। वो दोनों मेरे साथ व्हेन आई वाज सेक्रेटरी द काउंसिल वृंदावन जा रहे थे दर्शन करने, एक जगह है होटल, वहां पर हम रुके हुए थे। तो हमसे वो कहते हैं, मिस्टर गोस्वामी आप मैट्रिमोनियल केस बहुत ज्यादा करते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाइवोर्स इन एडवोकेट्स? मैंने कहा सर पहले तो शादी नहीं होता था, शादी हो गई तो टूट नहीं पाती। बोली कैसे? क्योंकि 0%। बोली कैसे? एक एडवोकेट घर से निकलता है, जरा प्रैक्टिकल सीखना जीवन में आज के बाद। घर से निकला, सबसे पहले क्लाइंट के साथ मत्था मारता है, कैसे भी करके कोर्ट जाने से पहले इसकी जेब से कुछ निकाल, उससे लड़ता है। कोर्ट में जाता है, एल में कहता है वकील साहब आपने क्या फाइल तैयार कर रखी है, आपने प्रोसेस दाखिल नहीं किया इसमें, उसकी सुनता है। फिर रीडर के पास खड़ा होता है, वकील साहब कुछ भी बैठा हूं, अभी टाइम लगेगा। फिर जज से भुलकाता है, फिर सरकारी वकील से लड़ता है, फिर थानेदार खड़ा है जज में, उससे लड़ता है, तब जाकर उसको कोई रिलीफ। फिर वो ऑफिस आता है, फिर कल भी फाइल। वकील बोलता है मेरे साहब, जब मैं घर जाके जब इतने लोगों की कोई हाई स्कूल पास है, कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएट है, वो धमकाता है मुझे पूरे दिन सुबह से शाम तक लड़ता हूँ, यदि 4 बार मेरी बीवी कह देगी तो क्या फर्क पड़ेगा? एक तो पहले नहीं होगा, पड़ोस में आप जिस दिन एनरोलमेंट करा के जाओगे, कोई दुनिया में ऐसी चीज बताइए जिसके नेम प्लेट को लगाने से कोई सामने वाला भयभीत हो, परेशान हो, चाहे वो लिखे कि मैं MBBS MD फलाना देखा कुछ भी टाइप और तुमसे तो दूना होशियार है, फलाना फलाना IFS हो भाई। तुमने जैसे एनरोलमेंट में कहता हूँ, आज भी कहूंगा वहां, जैसे आप एनरोलमेंट होगा, क्या नाम है आपको? लतिका एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे आपने घर पे नेम प्लेट लगाई पीतल के, उसमें बढ़िया थे, पड़ोसी तुम्हारे घर के सामने कार बंद कर देगा खड़ी करना, दूसरा आदमी तुम्हारे पापा की जो नमस्ते नहीं लेता था 4 बार की लड़की का एडवोकेट, रिश्तेदार दूर होने से हो जाएंगे कि भाई इससे ज्यादा बात नहीं करो। तो ये केवल इसी प्रोफेशन है। जब एक बच्चे ने कहा था कि पुलिस वाले साहब, मैं तेरी बात को बड़ी करता हूँ, मैं हमेशा याद रखता हूँ कोई कुछ कहता है, निश्चित बात है कि पुलिस वाला देखेगा तुम ही कर, मैं एडवोकेट, तुम ये बोझ में वो बीटेक की स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँ? हमारे यहाँ तो झूठ उसी दिन से शुरू हो जाते हैं जब LLB तुम 3rd ईयर में होते हो तो कहोगे फाइनल है हमारी। फाइनल वाला कहता है मैं बन गया, फर्स्ट ईयर वाला कभी ईमानदारी से कभी एडमिट नहीं करता है मैं फर्स्ट ईयर का हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर बोली मैंने 6 सेमेस्टर 4 में लगे,
तो पुलिस वाला जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, पड़ोसी की कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, रिश्तेदारों की कह रहे हो उससे भी ठीक है। केवल जीवन में एक चीज याद रखना, तुम पे काम हो या नहीं, काम हो, लेकिन घर वालों, मैं आज तुमको घर वालों के खिलाफ कर रहा हूं, हस्बैंड को, वाइफ को कभी मत को काम मुझे कोर्ट जाना है, चाहे अपना पेपर लेके रास्ते में खाते लौट आओ। तुमने ये कह दिया ना, एक मेरा जूनियर था रोहेला, नाउ ही सेलेक्टेड एज एडीजे झारखंड में जूनियर था। तो उनके ना परिवार बहुत बड़ा है उनका, जो कोई भी शादी होती कहाँ है भाई तू आसिफ, कुल सब शादी है मुझे हर महीने 3 शादी हो रही थी तुम्हारे, कभी कोई मैंने किसी तेरी बेइज्जती हो रही बहुत, उसकी समझ बात है कैसे सर, उनके दिमाग में तू निकम्मा वकील है, तेरे पास कोई काम नहीं है, फिर क्या करूं मैं, तू बिना काम के गाड़ी उठा 2 बार ऑफिस चक्कर काट फिर चला गया साहब, और ये कहता नहीं 2 केस करके मैं अभी लौटा। कभी जीवन में ये सो मत करना सबसे पर्सनल आदमी से, कोई तुम्हारा दोस्त है चाहे वो किसी और प्रोफेशन का है, चाहे तुम्हारा हस्बैंड है, चाहे तुम्हारी वाइफ है, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार है, आज नोट कर लो, हमेशा ही कहो बिजी हूं। चाहे आप कोई फ्रेंड से बात कर रहे हो 2 बात कह दो, अभी पैसे में ले लूंगी, चिंता क्यों करो, मैं ले लूंगी, काम करूंगी, आ रही कोर्ट में क्यों परेशान हो रहे हो। घर वालों को ये लगना चाहिए शादी में भी कि देखो बिजी है, नहीं कि ये वकील जैसे क्योंकि हमारे प्रोफेसर को नेगेटिव करने में 1 मिनट लगती है लोगों को, अरे जी 500 वकील होते हैं तो काम नहीं, ऐसा काम नहीं है ना। अपने ऑफिस में जाइए, अपनी सीट पे जहां आपका सिस्टम है जाके अपना 2 घंटे से बैठ के आओ, तुम्हें पता है घर में भी कुछ नहीं हो रहा, तो मेहंदी लग रही है, तो गाने बज जाऊंगे, 2 घंटे बाद लौट के आओ, जितनी लेडीज है वो पूछेंगे कहेंगे कि बेटा अरे 2 केस से करके अभी तुरंत निकल गया। रिस्पेक्ट है, कोई दुनिया में बड़ा वकील नहीं होता आज लोग कर, हम भी नहीं, कोई बड़ा वकील वो है जिसके पास काम है, उसके बाद में वजन है, काम नहीं होगा तो क्या सीखोगे। और एक आज के बाद किसी जूनियर को सीनियर को ज्वाइन कर लिया, कभी पैसे की बात। आज उल्टा क्या हो रहा है, जूनियर सीनियर को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फलाना वकील ठीक, सीनियर सेलेक्ट करते थे कि भाई मुझे जूनियर रखनी है यार, अब जूनियर कहते नहीं, मैंने उसके बजाय उसको काम ना पूछो। कोई बड़ा वकील नहीं होता, बड़ा वकील जिसके आज से वाली लोग करते करते आपके पास 4 मुकदमे आ गए। आज मानिए आपका सर्कल इस तरीके का है कि आपके पास 4 केस आ गए, तो यू आर बेटर देन हु आर प्रैक्टिसिंग, जो प्रैक्टिस करते हैं उससे भी बेटर हो आप। वकील बड़ा वो है जिसके पास वर्क है, और केस कोई बड़ा नहीं होता, तो कौन बड़ा होता है बताओ। आप में सारा सिखा के जाओ, कौन बड़ा होता है, क्लाइंट। पूछिए कैसे, पूछो, खड़े होकर पूछो, खड़े हो जाओ। कैसे सुनो, यदि किसी गरीब का मर्डर का केस, रिक्शा वाले का मर्डर, पैसा नहीं थे तो हम क्या कहेंगे जूनियर से, जाने यार वो है धकेल वाली, उसके हस्बैंड का केस है, चले जाओ। मर्डर का केस उसके जीवन का सवाल है, हमारे निगाह में वो क्लाइंट गरीब है, साइमल्टेनियसली क्लाइंट पैसे वाला है, उसके ऊपर 107-50 का कलंदरा केवल, कुछ नहीं जिसमें सजा नहीं होती। सीआरपीसी में 107-50 का कलंदरा पड़ना, 107-51 जो पब्लिक प्लेस पर आप झगड़ा कर दोगे तो पुलिस उठा के आपको बंद कर देगी, वो 107 बेल ऑफेंस है। और वो केस है, वो कहाँ है, बॉम्बे। तुम्हारा क्लाइंट कहाँ का है, तो 3 दिन से आप तैयार हो उसके केस के लिए, फ्लाइट में ले जा रहा, होटल में ठहरा रहा है आपको, फिर आपके पास बोला भाई बहस होगी 5-7 किताब में वकील ले जा रहे हैं, काम नहीं किताब का हो, पूरा बैग रख के ले जा रहे हैं। कोर्ट में पहुंचे वकील को तो पता ही अवेलेबल ऑफिस होना कुछ नहीं, 2 सेकंड में बहस करी, तो वो जो उसके संग घूर के गए 3-4 जूनियर थे, तो वो कहेंगे सामने देखो कितनी तैयारी करके आए सर, बहुत ज्यादा बहस करो तो बेल होनी थी, तो ठीक बेल मिल। तो क्लाइंट बड़ा हुआ या केस बड़ा हुआ, जीवन में याद रहेगी नहीं रही बात, केस बड़ा है, केस क्या बड़ा है,
जिसको वकील ने बड़े फीस दे दी वो बड़ा केस, जिसने फीस ही नहीं दी कोई केस नहीं। जी सर बोलो बोलो। सर एक सवाल है, आप हल्का ही है, कोई ऐसा नहीं मैं जवाब नहीं देता हूँ। बोलो सर, आप मथुरा से आए थे सर, और आपने बताया अपने स्ट्रगल, और आप फिर यहाँ आए 6 महीने में आपको सर निकाल भी दिया गया जान में। अब वो सीनियर ना मेरे पास बैठता है आके करना। मेरी कोविड में उसको अपने सीनियर में 6 महीने रहा था उस जमाने में, उसको कोविड हो गया। बोले गोस्वामी जी आप एटीजेस कमेटी के चेयरमैन, मैं अभी भी चेयरमैन, मैंने 25 करोड़ रुपया आप नॉलेज बता दो कोविड पीरियड में वकीलों की विधवाओं के लिए दिया है 25 करोड़। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपको कोविड हो गया तो पैसे दे दूं बात कौन से अपने सीनियर से कहा, बोले मिल जाएंगे। बुढ़ापे में खुश होता है, मैं कितने दिला दूं, बोले तेरी मर्जी आया है, मैं चलो मैं तुम्हारे लिए 50,000 रुपये भिजवा, बड़े प्रसन्न हो 50,000 रुपये। हाँ जी बोलो सर, कभी डिमोटिवेट तो हुए होंगे आप ऐसा ना? सर, कभी तो डिमोटिवेट हुए होंगे। क्या हुए होंगे? कब आप सर कैसा वो बोले इंग्लिश में बोले कि समझ लो बोल बोल। कभी मतलब आपका कहना है हिंदी में अनुत्साहित हुए हो, डिस्करेज हुए हो, ये कहना चाह रहा ना बेटा। हम डिस्करेज हुए होते ना तो आज तक इस स्पीड से यहाँ तक नहीं होते। अभी हमसे पूछा पिछली बार जब नॉर्मेट में 2 लड़कियों ने खड़े होके जब बोलिया मैडम वो बोले कि सर हम सब चीज मानते हैं। कितने साल की जैसे जो इंट्रोडक्शन देता सेक्रेटरी बार काउंसिल का कि गोस्वामी जी हैज कंप्लीटेड नाउ मिस्टर गोस्वामी हैज कंप्लीटेड 36 इयर्स इन दिस प्रोफेशन। जैसे उन्होंने 36 का तो तालियां तो बज गई। तो 2 लड़कियों से हमारी समझ में एक बात नहीं आई, तो क्या आपकी एज कितनी है? मैंने कहा एज शाहरुख खान और सलमान खान के बीच की एज। इस प्रोफेशन में बुढ़ा होना ही नहीं है। जब पैसा आ रहा इसमें, सुनिए मेरी बात, वकील की जवानी जो है ना वो बेकार है। वकील का बुढ़ापा अच्छा होता है तो यहाँ तो जवान रहना ही पड़ेगा आपको। यदि आपने ये कह दिया मैं बीमार हूँ, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, क्लाइंट नहीं क्यों आएगा आपके पास? अब बोलो बोलो क्वेश्चन क्या था? सर ये क्वेश्चन है सर कि आपके जीवन का कौन सा एक ऐसा केस था जो आपको मोटिवेट कर दिया कि नहीं अब मैं वकालत करूं? ऐसा हुआ होगा कोई? वकालत तो मैंने 7th क्लास में डिसाइड कर ली जो केस कहाँ था। सर यहाँ दिल्ली में आप नहीं सर, हाँ नहीं सर, आपको नहीं था, गॉडफादर नहीं था। हाँ क्या मतलब कौन सा केस प्रभावित किया? मुझे किसी ने कोई प्रभावित नहीं किया, जितना किया मैंने प्रभावित किया लोगों को। I was arguing in 1989. I was enrolled in Bar Council of Delhi 19 March 1987. जिस रात मेरा एनरोलमेंट होना था पूरी रात सोया नहीं, तो मेरे साथ एनरोलमेंट हो गया तो मुझे ऐसा लगता मैंने दुनिया की बहुत बड़ी डिग्री पाली। रानी जेठमलानी वाली डॉटर ऑफ राम जेठमलानी, she was appeared in the case of 406419. I was on the behalf, I was contesting the case of coupling लड़की। आज उस लड़की की जो सिस्टर है वो दिल्ली की है, वो इस समय हीरोइन है, हिंदुस्तान की बड़ी हीरोइन की। हम नाम तुमसे ईशा गुप्ता, उनका मैं केस कर रहा था। तो रानी जेठमलानी सेज, माय लॉर्ड, आई एम द डॉटर ऑफ renowned lawyer of India, Mr. Ram Jethmalani। कोर्ट भी हिल गया, आरएन चुप दस थे। मैंने कहा ये लॉर्ड से सॉरी, माय फादर इज नॉट राम जेठमलानी एंड इक्वल ऑफ राम जेठमलानी। आई एम नॉट द सन ऑफ एनी एडवोकेट, बट आई एम द राम जेठमलानी ऑफ माय क्लाइंट। और इन दैट केस बेल रिजेक्ट हुई, वो लड़का 13 दिन जेल रहा, एंड लास्टली द केस वाज डिसाइडेड इन आवर फेवर। ये ऐसे रोज की घटना है। और लास्ट घटना आपको ये बता दूं, 2017 माय नेम है रिकमेंडेड इन दी गिनी वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड इन मैट्रिमोनी। ये मैंने आपको बताया
2017 में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नाम गया मैट्रिकुलर डिस्प्यूट सेटल करने में। अप्रैल पूरा नहीं हुआ अभी, 86 केस हैज बीन डिसाइडेड म्यूचुअली बाय मी इन मैट्रिकुलर डिस्प्यूट्स। इसलिए दोस्तों, यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स, यू आर माई कलीग्स, फ्यूचर लॉयर्स। आप में से कुछ जज बनेंगे, आप में से कुछ सॉलिसिटर बनेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं यदि आप लोगों ने आज के इस लेक्चर में जो मुझे मैनेजमेंट ने आज बुलाकर जो अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसके लिए मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं, स्टाफ का धन्यवाद करता हूं और बताना चाहता हूं कि आज से 2 साल पहले मैं इसी कॉलेज में इंस्पेक्शन टीम का एक हिस्सा था। इस कॉलेज की लाइब्रेरी को चेक करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मैं था, मिस्टर नितिन अहलावत थे, एक हाईकोर्ट जज रिटायर्ड थे। मैं इस कॉलेज में आया था और इंस्पेक्शन करके गया था। आज ही मेरे लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी है जब आप लोगों ने समय दिया, और मैं केवल इतना कहूँगा, जब भी मेरी कहीं जरूरत आप लोगों को पड़े, मैं नंबर लिखा रहा हूँ, आप नंबर नोट कर लें। कभी भी इंटर्नशिप की कोई प्रॉब्लम्स कहीं भी आपको आती है, 9811 75 951 9811 75 951 RS गोस्वामी। जी सर, कुछ पूरा प्रिविलेज आप लोगों को पता है। मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आपको एक चीज दिखा रहा हूँ मैं। अब जैसे आज जिनका एनरोलमेंट होना है, उन लोगों को हम ऐसे भेजते लेटर। बुढ़िया आप ये आपके लिए एक पार्ट है जो आप सेकंड पार्ट को सुनाइए। सुनिए, सुनिए आप लोग। This is to inform you that your enrollment application form duly received in the office of Bar Council of Delhi on 6th April 2023 shall be taken up for consideration on 13th April 2023, Thursday at 3 p.m. You are necessarily required to be present in person in black coat, white shirt, black tie and black trousers, and shall carry your original educational documents before the enrollment committee in the office of Bar Council of Delhi at regards R.S. Goswami, Chairman Enrollment Committee, Rakesh Sherawat, Member Enrollment Committee, Kumar Mukesh, Member Enrollment Committee and Co-Chairman BCD, Sanjay Rathi, Honorable Secretary, Bar Council of India. Note: if the applicant does not appear in person, then application will be deferred to the next meeting. Note: please take note that you have not deposited your original LLB attendance certificate, which you may submit in the office of Bar Council of Delhi at City Fort at the earliest possible. ये होता है आप लोग जितना देखो आज आप लोगों के साथ कितना एटेंडेंट मिला, यहाँ से फिर वहाँ वे स्टूडेंट है, यहाँ तो आप स्टूडेंट है, वहाँ तो वो लॉ ग्रेजुएट है, और एक मिनट उनको लगता है कि हमारा किसी रीजन से एनरोलमेंट ना हो। कंप्लीशन ऑफ लॉ ग्रेजुएशन काम आता है, पकड़िए। नॉलेज नहीं है, पकड़िए, दूसरे से पूछिए। ये मत सोचिए कि हम 5 साल जब पूरे हो जाएंगे, जब हमारा एंटरटेनमेंट का और एंजॉय का काम पूरा हो जाएगा, तब हम वकालत शुरू करेंगे। इस लाइन की कोई भी, जब हम आपको ये बता रहे हैं कि जब हम 7th क्लास में थे, तब से मन में ये था कि हमें वकील बनना है। इसका मतलब की इच्छा है बड़ा वकील बनने की। तो जितना बन सकते हैं, हमें तो नहीं पता बड़ा और छोटे की परिभाषा क्या होती है, लेकिन इतना पता है कि जितना हमने इतने पीरियड के अंदर 36 ईयर्स इस प्रोफेशन में बहुत छोटे नहीं होते, लोग 2 बार रिटायर हो लेते हैं। और आज भी मैं समझता हूँ कि मैं काम से कभी जीवन में थकता नहीं, कभी नहीं थकता। एक काम प्रोफेशन भी करता हूँ, आप बार काउंसिल भी करता हूँ, सोशल लाइफ भी करता हूँ। पॉलिटिक्स वाली बात बताऊंगा नहीं, मैं पॉलिटिक्स में कहाँ हूँ,
उसका कोई फायदा नहीं आप लोगों को। वहाँ भी रहता हूँ, सोशल भी रहता हूँ, धार्मिक कार्यों में भी रहता हूँ, और इन सब के बावजूद, इन सब के लास्ट तक अपने परिवार को भी बचा के रखता हूँ। 28 दिन में 3 बार वाइफ को टाइम देता हूँ, सुबह घूमता हूँ उनके साथ, शाम को घूमता हूँ, जब सारी दुनिया हो जाती है फिर उनको लेकर पूरे प्रधान बिहार में राउंड लगाते हैं। वो राउंड इसलिए लगाता हूँ, देखता हूँ किसी के घर में शांति है या गड़बड़ है इनके घर। And I have 2 sons. Elder has completed law from Symbiosis Law College, and he has completed LLM from Birmingham University, London. Second child, he has completed law from WIPS. He was the president in WIPS, and thereafter he had completed law from Cardiff University, and he was the president in Cardiff. Now both are practicing in Delhi High Court. If anybody wants to go High Court for any internship and for any purpose of the station of High Court, chamber number 127, both are independently practicing there. Neither I ask them तुम क्या करते हो, जितना काम मेरे से होता मैं भेजता हूँ, जितना उनके पास होता वो अपना करते हैं। डेली दे आर अपीयरिंग इन द हाई कोर्ट। कोई मोह नहीं रखता, कोई ममता नहीं रखता। अलग से कोठी बना दी, शादी करो, एक फ्लोर पे एक जाओ, एक फ्लोर पे एक जाओ, मेरे से कोई लेना नहीं। क्वेश्चन इज, केवल एक अच्छा वकील बनना ही नहीं, आपको एक अच्छा इंसान, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। आपकी जिस समाज में जहां रहते हो, आपके बिना यदि कोई सड़क बना रही है एमसीडी, तो कहे वकील साहब का घर है, उनसे पूछ लो। ऐसी आपकी रेपुटेशन। ये नहीं होनी चाहिए कि जहां झगड़ा हुआ वहां तुम्हारा ही नाम आया और किसी का नाम नहीं। क्योंकि आफ्टर एनरोलमेंट यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। आपने गलत काम नहीं किया, पूरे वकील समुदाय ने पूरा गलत काम किया। बिना ड्रेस के कभी अदालत में मत जाओ, बिना प्रॉपर अच्छी ड्रेस के कोर्ट में मत एंट्री करिए, सबमिशन रहिए कोर्ट के सामने अपनी बात को। यू आर नॉट कॉन्ट्रैक्टर, आप एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपनी बात को अदालत में कहिए। ये 5-4 बातें हैं जिनसे इंसान जीवन में बहुत बड़ा बनता है। और केवल बड़ा बनना बड़ी बात नहीं होती, लास्ट बड़ा बनना क्या होती है फिर? बड़ा बनकर बड़े बना रहना। वकील बनना बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, रिटायर्ड लोग भी एलएल भी कर रहे हैं। वकील बनकर लॉ करके वकील अच्छा बनना, ये इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के साथ जो एक पारिवारिक इंट्रैक्शन हुआ, बहुत इंजॉय किया। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने मन से सुना। मैंने पूरी कोशिश की, जितना मेरे पास बल बुद्धि प्रसाद था। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू, एंड इन फ्यूचर मैं चाहूँगा जरूर जब आप फिफ्थ में होंगे, फाइनल के स्टूडेंट होंगे, तो एक बार ये नहीं भी बुलाएंगे तो आप बुला लेंगे। बुलाएंगे आप लोग? कॉल कर देंगे। कॉल पे नहीं मिलते ऐसे हम है? अभी तो वकील बनानी है बेटा, अभी तो कॉल शुरू हो गए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। एक सेकंड अभी कड़ा प्रसाद मिलेगा। आप 1 सेकंड अंदर आ जाओ, मैं जरा इधर खड़ा होऊंगा, इन सबके साथ कॉमन बुक ले लेंगे। आप लोगों के साथ एक फोटो